और जी आज की लास्ट ईमेल, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है. हाय जुनेद भाई, होप यू डूइंग वेल. आई फेल्ट लाइक सेंडिंग दिस email because I'm failing to find a solution to my problem. If you put my email in your podcast, don't mention any name or where I live. I'm 29-year-old Pakistani guy. My name is ABC. I'm working and residing currently abroad. I got engaged last year to a girl chosen by family. It was totally an arranged kind of thing. I didn't even know the girl before. I went and met her. She seemed very humble and nice person before engagement. I did ask her specifically if she likes anyone. Is there someone else in her life? Are you in a relationship or with someone else? I wanted to make sure that she is accepting me on her own and not forced by her family. सही, बिल्कुल सही सवाल है. She said she was very okay and she has no relationship with anyone, and we got engaged. I was in Pakistan back then. One day I received messages from someone claiming to know a lot about my fiance and knew her ex-boyfriend, and that guy wanted to give me information about my fiance's past. I asked that guy to give me information and who he was. He didn't tell me and blocked me from WhatsApp. वही होगा, ex boyfriend खुद ही होगा. I immediately informed my fiance about the situation. She denied being in a relationship and she said she didn't know anything about it. Later, I came back abroad and then I started receiving calls and messages from different numbers claiming to have my fiance's nudes, videos, and other stuff. I discussed everything with her and she denied for a little while. Then she accepted. Then my fiance told me she was in a relationship with a guy, and before she got engaged, she left that guy because he was unable to agree his family for marriage and was unable to send proposal. That guy who was contacting me later, I found out was her ex-boyfriend. I told you. And they were in a serious relationship. The guy wanted me to leave my fiance and end my engagement. I got extremely disturbed because my fiance lied to me. She kept on lying about her relationship with any guy, which messed up so much because that guy kept on messaging me and kept on telling me things I couldn't hear. It was painful. अच्छा, इसके बाद नंबर कहाँ से आया? That's a question. I couldn't discuss anything with anyone because her respect was at the stake. I don't receive any more messages or calls from him, but now my relationship with my fiance is suffering. I don't feel the same for her as she has accepted her mistake. She's so scared of leaving me. She's so scared of me leaving her. She wants to be with me at every cost. Even though she's a great person, I felt her lies messed up a lot of things. If she had discussed things briefly, we would have been in a better situation. But I am suffering mentally. I am unable to decide whether I should end my relationship or marry her. Your advice will help me टेक अ डिसीजन. थैंक यू. ऑलराइट जी, सो ये एक साहब हैं, बाहर मुल्क में रहते हैं. इनकी अरेंज शादी की बात हुई, मंगनी हुई. इन्होंने कैटेगोरिकली पूछा अपनी होने वाली फियांसे से कि आपका अगर कोई रिलेशनशिप है तो बता दें, या अगर आप कहीं और इंटरेस्टेड हैं, वांटिंग टू नो कि कहीं ये ज़बरदस्ती ना की जा रही हो. एंड इट्स अ राइट थिंग टू आस्क. और उन्होंने डिनाई किया और पास की भी कोई रिलेशनशिप डिनाई की, और फिर एक साहब के मैसेज आने लगे और उन्होंने कॉम्प्रोमाइजिंग तस्वीरें और वीडियोस का हवाला दिया और वगैरह वगैरह. सो फिर उन्होंने जाहिर है, जैसा कि आपने सुना, फिर एग्री एक्सेप्ट की अपनी मिस्टेक और अब ये उसमें है, परेशानी में. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बारहा इस पे कहा भी है और वीडियोस भी बनाई हैं. लड़कियों को कहा है कि अपनी न्यूड्स नहीं भेजा करें, बिल्कुल नहीं भेजा करें, क्योंकि इफ़ और ख़ास तौर पे ऐसा भी होता है एंड इट्स वेरी कॉमन कि when two people are having sex, some guys, दे पुल आउट देयर कैमरा. और फिर वो ज़ाहिर इन द हीट ऑफ द मोमेंट कुछ लड़कियां रेजिस्ट नहीं करती, बिकॉज लड़कों का आगे से ही कहना होता है, ओ आई एम जस्ट सेवरिंग द मोमेंट बिकॉज आई वांट टू लुक एट इट लेटर ऑन और आई वांट टू जर्क ऑफ टू इट लेटर ऑन. वो सिर्फ इसलिए बना रहे होते हैं बिकॉज उन्होंने अपने दोस्तों को दिखानी होती है. इसका और कोई रीज़न नहीं होता. इफ़ ही इज़ ऑलरेडी गेटिंग एक्शन, ही शुड जस्ट गेट दैट राइट. मगर इस तरह वीडियोस बनाना या तस्वीरें मंगाना, बहुत सारे लड़के होते हैं ग्रुप्स में शेयर कर रहे होते हैं, एंड इट्स वेरी डिस्गस्टिंग. क्योंकि एक बार आपकी तस्वीर का फुटप्रिंट आ गया इंटरनेट पे, इट विल नेवर गो अवे. सो लड़के जो हैं ये तस्वीरें दोस्तों को दिखा रहे होते हैं, ग्रुप्स में बांट रहे होते हैं, इंटरनेट पे होती हैं. इसको इस तरह सोचें. अगेन, मैंने हमेशा कहा है, विद द फर्स्ट इंटरनेट जनरेशन वी ओनली मोस्टली सीन द बेनिफिट्स. इसके डार्क साइड भी है और अब तो खैर नज़र आने लग भी गई है. इमेजिन अ सिनारियो कि आपके नाम से आपकी तस्वीरें, आपकी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, एंड लाइक 20 years down the line your son or your daughter decides to Google you ऐसे ही, and then he comes across all of that. तो फिर इमेजिन. सो हीट ऑफ द मोमेंट में लोग बहुत चीज़ें कर जाते हैं. लड़के वादे भी करते हैं, मैं कुछ नहीं करूँगा, या मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, दिस दैट ये वो. इफ़ यू अगेन, बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं इसके बावजूद भी मंगाते भी रहेंगे और बहुत सारे लोग भेजते भी रहेंगे. बट अगर आपने यही भेजना ही है
तो मेक श्योर योर फेस इज नॉट इन देयर. यू नेवर नो, द गाय हु ट्रूली लव्स यू राइट नाउ विल टुमारो एंड अप ruining your life. And vice versa, even some women can do that to you as well. There is no denying कि ये किसी एक जेंडर तक नहीं है. जैसा कि ये है, अब मेरे दोस्त के साथ मेरे दोस्त की मंगनी हुई थी. मेरा दोस्त बहुत शरीफ था, अभी भी बहुत शरीफ है माशाल्लाह. ही इज मैरिड विद किड्स नाउ. तो उसने अब देखो एक चीज होती है कि इस पे मैं आता हूँ पास वाली बात पे. उसकी एक जगह बात चल रही थी, राइट, और उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही. वो बॉयज स्कूल में पढ़ा और वो हमेशा से बड़ा शाय था. और फिर उसकी वो रिश्ते देखने जाता था. फिर एक जगह बात हो गई. फिर जहाँ हुआ कि बात आगे बढ़ेगी, फिर उसको एक ईमेल आई उनके बॉयफ्रेंड की तरफ से कि आप यहाँ से पुल बैक कर जाएं, मेरा इनसे है, वो शायद आपको बता नहीं पा रही वगैरह वगैरह. एंड देन ही जस्ट थॉट कि यार जब मैंने जिंदगी बगैर किसी पास के गुजारी तो देन आई डोंट डिजर्व दिस. तो देन ही उसने रिश्ता वही खत्म कर दिया. अब इसमें दो चीजें हैं कि यू हैव रिमेन्ड वर्जिन बिकॉज यू वांटेड टू रिमेन वर्जिन, या आपको मौका नहीं मिला. ट्राई आपने पूरी की लेकिन मिला नहीं, और जब नहीं मिला तब आप पारसा बने आ रहे हो कि जी देखिए मैंने तो कुछ नहीं किया, हालांकि ट्राई पूरा किया होगा. और फिर मुझे भी अगेन ये सब की अपनी अपनी चॉइसेस हैं. इन दिस डे एंड एज यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको बिल्कुल जो है ना जिसको आम जबान में, बाजारी जबान में डब्बा पैक कहते हैं या सील पैक कहते हैं, ये बड़ा मुश्किल है. तो एवरी वन यू फाइंड विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ पास दैट यू हैव टू डील विद. अब उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया, क्यों झूठ बोला, अगेन नोइंग फुल वेल हमारे कल्चर में ज़ाहिर है इन चीज़ों की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है. किसी भी किस्म के पास्ट की एक्सेप्टेंस नहीं होती. एंड ऑफ कोर्स देयर कम्स अ पॉइंट इन अ गर्ल्स लाइफ एज वेल कि जहां उनको ये लगता है कि यार अब मैं अगर बताती फिरी तो मैं तो सिंगल ही रह जाऊंगी, तो फिर ठीक है मैं छुपा लेती हूँ. आई होप ये चीज़ सामने ना आए. मगर व्हेन यू डिड जर्क ऑफ लाइक दिस गाय, तो फिर वो चीज़ें नहीं छुपती. अगेन अब कुछ लोग बोलेंगे कि जी लड़की ने कहा है तो वो सेफ्टी है, अगर लड़का इस तरह पास छुपा के आता तो आप उसको कहते कि फुल धोखेबाज है, दिस एंड दैट. अगेन मेरा ये मानना है बट इट्स एन आइडियल सिनारियो. ये सबके लिए मोतबर शायद ना हो, या सबके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, या सबके लिए कारामद ना हो. आई थिंक यू शुड कम आउट क्लीन एंड यू शुड टेल कि भाई मेरे ये रिलेशनशिप्स रही हैं एंड देयर इन द पास्ट, यू आर नॉट इन द पिक्चर बैक देन. आपकी प्रेजेंस में कुछ हो तो वो बात अलग होगी, लेकिन ये कि ये मेरा था. क्यों नहीं हुई शादी, मैं एस्टैब्लिश नहीं था, या मेरी नौकरी नहीं थी, या मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, या वट एवर रीज़न, इट फेल आउट एंड नाउ आई एम नॉट इन टच विद देम एंड देयर हिस्ट्री. तो इस तरह अगर आप बात कर लें तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है. अगेन आजकल के दौर में ये तो और ज़्यादा कंसर्निंग होगा कि अगर कोई 28 साल गया, 30 साल गया और उसका कुछ भी ना रहा हो, तो पता नहीं कि बंदा क्या सीन है भाई ज़िंदगी में. सो ये ज़रूर आप एक्सपेक्ट करें कि पीपल विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ बैगेज दैट दे आर डीलिंग विद, तो उससे वो ना हो. अगर तो आप जैसे कि आपने कहा कि आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, अगेन आपकी भी मेरे दोस्त वाला सीन हो कि जी मैंने तो कोई भी पास्ट मेरा क्लीन रहा है. अगेन वो क्लीन इसलिए रहा है कि आपने क्लीन रखा, या क्लीन इसलिए रहा है कि आपको मौका नहीं मिला. दूसरी चीज़ ये कि इफ़ यू कैन कम टू टर्म्स विद इट, लेट गो कर सकते हो तो कर लो. देर विल बी पीपल लाइक दीज. अब जस्ट बिकॉज देखिए अगेन इन द हीट ऑफ द मोमेंट गलतियां करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करते हैं. अब अगर किसी ने 21-22 साल की उम्र में, जो कि कोई उम्र नहीं होती, उसमें कोई इस तरह की मिस्टेक कर ली जहाँ पे न्यूड्स एक्सचेंज हो गई, या सेक्सटिंग हो गई, या वट, तो अब उसका खुमियाजा वो जिंदगी भर नहीं भर सकते. अगर तो उन्होंने दिल से माफ़ी मांगी, अल्लाह से माफ़ी मांगी, और अपने आप को लेसन दिया कि मैं आइंदा ये नहीं करूँगा, तो देन पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड दे मूव ऑन. तो अगर तो आप इतना दिल रखते हो कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो एंड देन मूव फॉरवर्ड, और फिर ये कि फिर ये भी मेक श्योर करना है कि जो लोग इस तरह की चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, फिर आपने बड़ा दिल रखना. तो ये नहीं कि फिर हर लड़ाई में आपके पास जब सारे कार्ड्स ख़त्म हो गए तो आपने ये पत्ता मारा, तू तो 2 नंबर थी और चालू थी तेरी तो तस्वीर इंटरनेट पे फैली. फिर आपने ये नहीं करना कि हर लड़ाई में आप फिर वो चीज़ लाओ, फिर देन इट्स वेरी हर्टिंग. फिर आप भी हर्ट हो रहे हो, वो भी हर्ट हो रही है. अगर लेट गो करना है तो फिर कंप्लीटली लेट गो करना है, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करना है, रिसाइकल बिन से भी बाहर फेंकना है. अगर नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि इफ़ यू फील डिसीव्ड, मैं आपकी बात कर रहा हूँ इन जनरल, अगर आपको लगता है कि यू बिन डिसीव्ड, तो फिर दैट्स योर डिसीजन. लड़की ने क्यों नहीं बताया वो भी मैंने आपको वजह बता दी. लड़के भी गालिबन इसी वजह से अगर छुपाएं तो छुपाएं. मगर उसमें मोटिव वाली बात है ना. अगर तो कोई 3 शादियां करके बैठा हुआ है और आप बोल रहे नहीं जी मैं सिंगल हूँ और मेरा तो कुछ भी नहीं है, और फिर वो आपसे चौथी शादी करना चाह रहे हो, पीछे उसके 3 बच्चे भी हैं और बीवियां पाल रही हैं,
तो वो तो सरासर धोखा है। तो फिर अगेन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, उन्होंने शी ट्राई टू सिक्योर यू, शी ट्राई टू सिक्योर दिस रिलेशनशिप, सिक्योर दिस मैरिज। इट डजंट फ्लाई वेल विद अ देसी मैन। जब आप कोई औरत बताए, मर्द तो भाई हंक होता है ना। अब क्या ही मैं हवाले दूं अपने मुल्क के, किताबें भी अगर आ जाएं तो मर्द के ऊपर तो कुछ भी कीचड़ नहीं आता, खल्ली वल्ली टेंशन ही नहीं है, वो तो हंक है यार, वो तो ज़ाहिर स्कोर करेगा इधर उधर। बट अगर किसी खातून पे आ जाए तो फिर वो उसकी ज़िंदगी भर वो लेबल हो जाती है। तो ये मसला है कि हमारे मयार जो हैं मर्द के लिए अलग है, औरत के लिए अलग है। तो अगर तो आप इसको फुली एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना चाहते हैं, इफ़ यू इसको फिर आप स्वॉट एनालिसिस ही कर सकते हैं कि भाई इन द ग्रेटर गुड ऑफ योर पीस क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको ये चीज़ लगता है बार बार हॉन्ट करेगी, आई वुड सजेस्ट कि आप बैक आउट हो जाएं फिर, क्योंकि फिर ज़ाहिर है देखो, पीस ऑफ माइंड जो है ना अल्टीमेट गोल है। अगर आपको लगता है ये चीज़ आपको इतना अफेक्ट करेगी और हॉन्ट करेगी बार बार, तो फिर ठीक है, फिर आप एक्सक्यूज़ कर लें सिचुएशन से। लेकिन अगर आप अपने आप को इतना मजबूत समझते हैं कि कि आप उस इंसान को, अपनी मंगेतर को भी इंसान समझेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, एंड शी एंडेड अप डेटिंग अ वेरी रॉन्ग गाय, क्लियरली होगा कोई जो, मुझे बड़ी बुरी हरकत लगती है कि खुद शादी भी नहीं करते। अगेन ये भी एक वजह है न्यूड्स ना भेजने की, कि एक तो ये कि वो दोस्तों में शेयर हो रही होती हैं या दोस्तों को दिखाई जा रही होती हैं, दूसरी वजह ये है कि वो फिर आपके खिलाफ एक टूल बन जाता है और जिंदगी भर का। वो खुद भी शादी नहीं करेगा लेकिन आपकी कहीं करने भी नहीं देगा, आपकी कहीं होने भी नहीं देगा, और ये फिर लड़के करते हैं। इसमें आई वुड सजेस्ट कि जो लड़कियां इस तरह का फेस कर रही हैं ब्लैकमेल, आप साइबर क्राइम जाएं। अब साइबर क्राइम का इशू ये है, अगेन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, अब आई डोंट नो ये दूसरे मुल्कों में किस तरह केस ट्रीट होता है। यहाँ पे अगर कोई लड़की जाती है कि जी मेरी न्यूड्स के साथ मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वो न्यूड्स प्रिंट आउट में सबमिट करानी होती है और इंस्पेक्टर नौशाद के पास वो फाइल होती है, और वो फाइल इसी तरह के कैबिनेट्स में रखी होती है, उसमें हजारों लड़कियों की इस तरह तस्वीर है। अब आई एम नॉट ओके विद दिस। एक बंदा है, एक विक्टिम है, वो विक्टिम अगर देखिए मेरी बात सुने, अगर तो लेडी इंस्पेक्टर को दिखा दे कि भाई आप वेरीफाई कर लिए, देखिए मेरी तस्वीर है और इससे मैं ब्लैकमेल हो रही हूँ, और वो कोर्ट में बता दे, प्रिंट आउट की क्या जरूरत। लेकिन ये है, अब आई डोंट नो इसके पीछे क्या सोच है क्या नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है कि रेप का जो अगर कोई विक्टिम है खातून, और पेशी पे अगर वो जा रहे हैं, तो जो परपेट्रेटर है वो और विक्टिम साथ ही बैठा के गाड़ी में लेके जाते हैं, साथ बैठा के लेके जाते हैं। इमेजिन एक आदमी जिसने आपके ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया हो, उस साथ आप वैन में बैठ के जा रहे हैं कोर्ट। हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी और इन मामलात में जो है ना सेंसिटिविटी नाम की चीज़ नहीं है। तो सिमिलरली साइबर क्राइम में ये इशू है। अब ये है क्या कर सकते हैं, और साइबर क्राइम में फिजिकली जाएं तो ही आपका काम शायद आगे बढ़ता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन उनके पास रोजाना को 20-40 हज़ार आ रही होती हैं, किस किस के पीछे भागेंगे। तो हिम्मत नहीं हारें और डटे रहें और सामने बंदे का मुकाबला करें, ब्लैकमेल ना हो किसी से। कोई अगर बोलता है कि मैं लीक कर दूंगा, वो बोलती है तू क्या लीक करेगा, मैं खुद लीक कर देती हूँ, जा क्या करेगा, क्योंकि अगलों के उसके पास उससे बड़ा वेपन कोई है नहीं आपके पास। तो इसको केयरफुली आपने मनूवर करना है और इन लोगों को कैफरे किरदार तक लाना है। और ये बड़ी घटिया हरकत है। आई वॉज डीलिंग विद द केस जहाँ पे एक साहब किसी और मुल्क में थे और वो पाकिस्तान का नंबर यूज करके बीवी जिसको तलाक दे चुके थे उसकी एक प्रोफाइल बनाई हुई थी और वहां पे अपलोड कर रहे थे, अपलोड किए जा रहे थे। वो फेसबुक पे रिपोर्ट करें, इधर करें। अब चूंकि वो पाकिस्तानी नंबर से हो रहा है तो जिस मुल्क से हो रहा है वहां पे केस रजिस्टर नहीं हो पा रहा, बड़ा टेक्निकल इशू था। और साइबर क्राइम अब यहाँ से जहाज लेके तो नहीं ब्राजील जाके बंदे को पकड़ेगा। गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो ये बड़ी घटिया हरकतें होती हैं, और ख़ास तौर पे ये जो एक्स हस्बैंड्स जो हरकतें करते हैं। आई रिमेंबर अ केस, इस पे मैंने बात भी की थी एक बार। एक साहब थे, उनको ही लाइक्ड फोटोग्राफिंग हिज वाइफ इन किंकी क्लोथ्स, और वो करते थे। उनके पास कोई 800 तस्वीरें थी, और जब बेगम से लड़ाई, अच्छा, और बेगम जहाँ काम करती थी, चौकीदार से लेके सीईओ तक सबका नंबर था, क्योंकि उस तरह के होते हैं हस्बैंड, मुझे सबका नंबर चाहिए। फिर चौकीदार से पूछते हैं कितने बजे आई थी, फिर मैनेजर से पूछते हैं कितने बजे आई थी, एचआर से पूछते हैं, समझ रहे हैं, इस तरह के होते हैं। और अगर बीवी से लड़ाई हुई तो चौकीदार से लेके सीईओ तक 800 तस्वीरें भेज दी। अब सोचो उस औरत जो कि पाकिस्तान में एक इदारे में काम कर रही है, और गेट से लेके ऊपर दफ्तर तक सबके पास उसकी 800 तस्वीरें हैं, तो क्या उसके वो गुजरेगी। मगर है, और पता नहीं औरतें फिर क्यों इस तरह के मर्दों के साथ रहती हैं। मगर ये है, इस तरह के बड़े केसेस हैं यार, अनफॉर्चुनेटली। सो प्लीज मेक श्योर नेवर लेट योर गाय टेक फोटोग्राफ्स ऑफ यू लाइक दिस। चाहे वो जितने वादे करे, वो आज आपका शौहर है, आज आपका मंगेतर है, कल वो आपका एक्स होगा, तो फिर जिंदगी आपकी खराब कर देगा। तो इन चक्करों में ना पड़े, दूर रहें इन चीज़ों से। बाकी भाई आपको फिर यही है कि अगर तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो,
और उसको एक इंसान समझ के माफ़ कर सकते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इट्स टू मच फॉर यू टू हैंडल एंड इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ, इट्स अफेक्टिंग योर पीस, इट्स अफेक्टिंग योर प्रोडक्टिविटी इन एनी वे, तो फिर शायद मैं रेकमेंड करूंगा आप ना ही करें। लेकिन अगर करें एक्सेप्ट तो फिर जिंदगी भर इसको ताला लगा दें, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कर दें और कभी लड़ाई में ब्रिंग अप ना करें। जितने लोग हैं मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि नेवर ब्रिंग द पास्ट ऑफ योर पार्टनर। जो था वो हो गया, इंसान गलतियां करता है और गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। तो कभी भी लड़ाई में ये बड़ी गिरी हुई हरकत होती है कि जब आप अपने पार्टनर का पास्ट उसके सामने ला के रख देते हैं कि तू तो है ही 2 नंबर वगैरह वगैरह। ये चीज़ ना करें, ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है। एक्सेप्ट कर लिया है तो बस ताक़यामत ज़िप कर दें, दफना दें उस चीज़ को। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप जो है स्टेप असाइड हो जाएं और किसी और को ढूंढें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।